I want to thank God for giving this opportunity once again to be in your midst. फिर से एक और बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर मुझे दिया है कि मैं आप सबके बीच में आ सकूं। Let it be our prayer that God will bless us and speak to us, very especially this evening. खास करके शाम के वक्त हमारी प्रार्थना यही हो कि प्रभु हमसे बात करे। Okay, we'll pray and start. हम प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। Father, bless this time that we spend together. And Father, we प्रभु pray that may we have a meaningful time, a blessed time listening from you. And Father, very especially that your word will enable us, O Lord, to understand the life to which you have called us. In Jesus' most exalted name we pray. Amen. Amen. Yeah. So the topic that we have is on stress management. That's what we'll be dealing with. I'm going to share my screen. Okay. I've been told disabled. Can somebody enable me to share screen? You can do it now. Okay. Okay. Thank you. Okay. Yeah. So here we are. Stress management. This is the topic that we're going to deal with. आज का जो संदेश है वो तनाव के ऊपर है या तनाव से किस तरह बचा जा सके उसके ऊपर है। Okay, so I think one of the reason I wanted to deal with this topic is we are living under stressful situations, stressful times, challenging situations. We have never faced, as a matter of fact, a generation ago, people have never even faced, हम इस समय पर एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसे तनावों के सामना हम कर रहे हैं, तनाव भरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो पिछले पीढ़ी में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। Our world has changed. We are living in a totally different world. हमारी दुनिया जो है वो बदल चुकी है। आज का जो ज़माना है वो बिल्कुल अलग एक ज़माना है। We would have never imagined it even 6 months back. हमने कभी 6 महीने पहले ये सोचा भी नहीं था कि आज कौन से परिस्थिति में हम होंगे। And the change has brought in quite a lot of stress. और ये बदलाव जो है वो अलग प्रकार के एक तनाव को हमारे जीवन में लेकर आ चुकी है। Anxieties we never imagined. जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं उसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। We hear stories after stories of people taking up their lives. हम ऐसे कहानियों को सुनते हैं जहाँ पर लोग उनके जीवन को आत्महत्या के द्वारा ले लेते हैं। Okay, people are going through depression. लोग जो है वो उदासीनता से गुजर रहे हैं। So we are really living under hard, tough and challenging times. और तो ये सच है कि हम एक ऐसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। Okay, so the whole point is how do we manage stress? How do we deal with? How do we cope with stress? इस सब का जो संक्षिप्त में कहा जाए तो सवाल ये उठता है कि किस प्रकार हम इस तनाव को उसका निवारण करें, उसमें से निवारण करें खुद को या उसमें से किस तरह बचने की कोशिश करें। When you come to Mark chapter 4, जब हम मरकुस के सुसमाचार में आते हैं उसके चौथे अध्याय में we see the disciples going along with our Lord Jesus Christ in the boat, and there was a storm. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले जो हैं एक नाव में यात्रा कर रहे हैं और उस वक्त एक तूफान उठता है। And the storm was so bad that they were really sinking, and they were, crying and doing the best to save themselves. वो तूफान इतना ज्यादा बड़ा था कि वो रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे या चिल्ला रहे थे कि कोई उन्हें उसमें से बचा ले। But we see our Lord quietly sleeping there in a corner. परंतु हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं शांति के साथ वो सो रहे हैं। Okay, so literally the disciples had to wake him and say, "Don't you care that we are going to perish?" तो वहां पर जो चेले हैं उन्हें सही मायने में उनको जाकर जगाना पड़ा और उनको पूछना पड़ा, क्या आपको ये बात चिंताजनक नहीं लगता कि हम सब मरने वाले हैं? We see the disciples all stressed. हम देखते हैं कि ये सारे चेले जो हैं, शिष्य जन है जो है वो चिंता में है या परेशानी में है। They were fishermen. They were not the first time in the sea, but we look at their anxieties, their
despair that they're going to die. But we see on the other side, our Lord Jesus Christ, peaceful and calm. हम देखते हैं कि ये जो चेले जो हैं वो उनमें से कुछ मछुआरे थे। ये पहली बार नहीं था कि वो इस प्रकार के तूफान को देख रहे हैं, परंतु फिर भी उनमें इस प्रकार का तनाव था, इस प्रकार का एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर परेशानी थी। परंतु विपरीत में हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो आराम से शांति के साथ विश्राम कर रहे थे। Don't forget this picture. This is a picture that we're going to capture throughout our time this evening. ये चित्र जो आपकी स्क्रीन पर अभी है उसे भूलना मत, क्योंकि इस चित्र के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। How our Lord was, that's the calling that we have all been called to live our lives, to walk in His footsteps. प्रभु किस प्रकार के थे, उस प्रकार के बुलाहट को हमें दिया गया है ताकि हम उनके पच्छिनों के अनुसार, पच्छिनों में हमारे कदमों को रखकर आगे बढ़ सके। Okay, we don't see fear, anxiety, stress taking control of our Lord's life. हम कभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस प्रकार नहीं देखते हैं कि कभी उनको तनाव या उदासीनता ने उनके ऊपर वो हावी हुए हैं। There was only one moment in the life of our Lord where He was really stressed. एक ऐसा क्षण था प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जहां पर वो सच कहो तो तनाव में आए थे। That was at the Garden of Gethsemane. वो गत्समने के बगीचे में था। Okay, even there He overcame the stress. परंतु हम देखते हैं वहां पर भी उन्होंने तनाव के ऊपर जीत हासिल की। Okay, so what is stress? तो अगर हम सवाल पूछें कि तनाव क्या होता है, Okay, stress is a response to a situation. हम देखते हैं कि तनाव जो है एक परिस्थिति के तरफ किए जाने वाली एक प्रतिक्रिया है। That really overwhelms a person. जो एक इंसान को अपने भावनात्मक रूप में उसे बहने के लिए अवसर देता है। He's not able to meet the demand of the situation. और जिस परिस्थिति में वो है, उस परिस्थिति को वो संपूर्ण रूप में अपने काबू में नहीं कर सकता। Okay, stress could be brought by anything. तनाव जो है वो किसी भी कारण के वजह से हो सकता है। But here is a person who is not able to handle it. परंतु अब यहाँ पर एक इंसान है जो इस परिस्थिति को अपने काबू में नहीं रख सकता या उसे संभाल नहीं सकता। So here we are. We look at what are the things that causes stress. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से विषय हैं जो तनाव लेकर आ सकते हैं एक जीवन में। Okay, stress can actually do a lot of damage to us. और अगर हम तनाव के बारे में ये देखें तो तनाव एक ऐसा विषय है जो हमारे स्वास्थ्य को काफी परेशानी में डाल सकता है। It could endanger one's life. वो एक इंसान के जीवन में या जीवन को नाश कर सकता है। It can destroy relationships. वो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, रिश्तों में खलल पैदा कर सकता है। So stress can be really distressing in that sense. और तनाव जो है उस मायने में उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बुरी अवस्था में एक इंसान को पहुंचा सकता है। Okay, look at some of the things that we can see. अब हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जो आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है I जो want you to तनाव look से at जुड़ा the हुआ है। top aspect, just the top aspect. अगर आप ऊपर लिखे हुए चंद विषयों को अगर हम देखें तो क्या समझ सकते हैं? Okay, it says 70% of people are constantly under stress. लिखा है कि 70% लोग जो हैं वो लगातार तनाव में जी रहे हैं। Do you know what is the situation in our own state of Bombay? क्या आप जानते हो कि हमारे इस बॉम्बे में जहां पर हम रहते हैं उसका परिस्थिति क्या है? Once upon a time, I heard that almost 1 out of every 3 person goes through depression and stress. मैंने इस प्रकार सुना था कुछ दिनों पहले कि 3 में से करीबन 1 इंसान जो है वो अवसाद या उदासीनता से गुजरता है, उसके परेशानी से गुजरता है। Now, can you imagine during a lockdown period like this, where people are going through really stressful times? तो अगर हम इस समय का कल्पना करें जिस समय से अभी हम वर्तमान समय से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, तो किस प्रकार के परेशानी से लोग अभी गुजर रहे होंगे? Interesting, you see that women are more prone to sex than men, stress than men. हाँ, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम पढ़ते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से ज्यादा इस तनाव में पाए जाते हैं।
It says young people are more prone to stress than older people. एक दूसरा गिनती इस प्रकार बताता है कि जो जवान है वो जो वयस्क हैं उनसे ज्यादा तनाव में रहते हैं। Almost 80% of diseases are caused by stress. हम देखते हैं कि करीबन 80% जो शारीरिक कमजोरियां हैं वो तनाव की वजह से हो सकते हैं। So in that sense, when you're looking at stress, can be something that can really create havoc in a person's life. तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि तनाव एक ऐसा विषय है जो एक इंसान के जीवन में बहुत अलग-अलग प्रकार के विनाश लेकर आ सकता है। Interestingly, this is some of the statistics from workplace actually. ये एक अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आप समझ सकते हो कि नौकरी के संबंध में जो तनाव है उसके विषय में यहाँ पर कुछ गिनतियां लिखी है। You can read it for yourself. Look at the state, very especially when it comes to workplace, the pressure that people are facing. I'm told today the whole situation has changed. People are at home working, they're not traveling, but yet people are so stressed. अगर आप अपने स्क्रीन में देखोगे तो आप खुद से पढ़ सकते हो कि अवस्था कितनी बुरी है। केवल इतना ही नहीं परंतु ये समय जब लोग अपने घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, जो परिस्थिति है उसमें कोई खास फर्क नहीं है, लोग अभी तनाव में हैं। Okay, so we are looking at situations, how under deep pressure, strain, that is really creating havoc in the lives of people. हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो लोगों के जीवन में इस प्रकार समस्या पैदा कर रहे हैं। Okay, now let's ask us, is stress good or bad? तो एक सवाल हम खुद से पूछेंगे, क्या ये तनाव अच्छा है या बुरा है? Okay, what do you all say? I'm sure most आप of you will लोगों say it's not good. आप लोगों का जवाब क्या है? मुझे लगता है आप में से बहुत ये कहेंगे कि बहुत ऐसे होंगे जो कहेंगे कि तनाव अच्छा नहीं है। But actually speaking, we need a certain amount of stress. परंतु सच कहें तो एक थोड़ा तनाव हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। उसका एक छोटा-सा अमाउंट हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। Those of you who play musical instruments, आप में से जो गीत संगीत या उसके इंस्ट्रूमेंट्स को जो बजाते हैं, वाद्यों को जो बजाते हैं, you understand that whether it's a guitar or a violin, it needs to be stressed to a certain extent to produce the right note. हम ये समझते हैं कि भले वो गिटार हो या वायलिन हो, उसके उसके जो चाबी है उसे घुमाकर उसके तारों के ऊपर कुछ तनावों को लेकर आना पड़ता है, एक तनाव को लेकर आना पड़ता है ताकि वो सही सुर दे। So we need certain amount of stress in our life to live a life of balance and responsibility and to be accountable. कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में थोड़ा तनाव होना ज़रूरी है ताकि हम हमारे जीवन को सही ढंग से जी सकें। Okay, let's take this example. When you look at the state of Maharashtra, they decided to do away with exams, their final exams up to 6th or 7th standard. अगर हम हमारे इस राज्य की बात करें जहाँ पर हम जीते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार छठी और सातवीं के परीक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वो देने की जरूरत नहीं। Okay, what happened? उससे क्या हुआ? When these same children come to 8th standard, जब यही बच्चे 8वीं में आएंगे उस वक्त, and when 8th standard, when they started giving the exams, they failed miserably in the exams. और ये बच्चे जब 8वीं के परीक्षा को देंगे, हो सकता है वो बुरे तनाव को उनका सामना करना पड़े। One of the reasons they were not able to give their exams well was because they've been used to live that life of carefree attitude of not studying, taking everything for granted. एक कारण जो ये बच्चे उस एग्जाम्स को नहीं दे पा रहे थे, उसका कारण ये था कि वो एक चिंता रहित एक जीवन को बिता रहे थे या पढ़ाई में उनका कोई तनाव उनके दिमाग में नहीं था। So life needs to be lived in a balance. There will be stress in life, and how we handle it, how we balance is all that matters. तो अगर देखा जाए तो एक जीवन को इस प्रकार अच्छे बैलेंस के साथ जीना है जहां पर जिंदगी और तनाव का जो मात्रा है वो एक समान हो ताकि हम चीजों को सही ढंग से कर सके।
Okay, let's look at what are the things that causes stress. अब जरा ध्यान से देखेंगे कि तनाव किन विषयों की वजह से होता है. Okay, let's look at the first thing that we see. Many times our circumstances, the situations that we are going through, causes oftentimes stress. अगर हम ध्यान से देखें तो कई बार हमारी परिस्थिति जो है वो हमारे जीवन में तनाव पैदा कर सकती है. Okay, it could be a loss of a job. हो सकता है आप नौकरी का खो देना एक कारण बने. It could be a very stressful situation. ये बहुत ही तनाव से भरा हुआ परिस्थिति हो सकता है. There are a number of questions comes to a person, who's lost his job. How can he manage himself? How can he take care of his children? What can he do with his EMIs? So it could be a stressful situation. There are circumstances when a person goes through that can be very stressful. और उसके मन में जिसने नौकरी खो दिया है उसके मन में ये तनाव के कारण बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं. ये सवालों की वजह से बहुत तनाव हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ अब क्या होगा, मैं कहाँ पर अगला नौकरी करूंगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इत्यादि सवालों के साथ वो घिर जाता है. So the circumstances could be a breakdown in relationship. और कई बार परिस्थितियां अगर हम कहें तो रिश्तों का टूटना या उसमें खलल पैदा होना एक परिस्थिति बन सकती है. Okay, there are people that can't handle, breakdown of relationships. ऐसे लोग हैं जो रिश्तों का जो टूटना है वो उनसे संभला नहीं जाता. And we hear stories about so many people when they go through those stressful times, the way they damage their lives, and some of them even take away their lives. और कई बार हम इन घटनाओं को सुनते भी हैं जहां पर हम सुनते हैं कि किस प्रकार रिश्तों के टूटने के वजह से लोग अपने जान को ले लेते हैं, अपने जान को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं. We love to live in our circumstances very cool, very comfortable, adjustable. But when these circumstances changes our life situations, we go through tremendous stress. देखिए, हम हमारे जीवन या हमारी परिस्थिति में बहुत शांति के साथ, बहुत आराम के साथ जीना तो चाहते हैं, परंतु जब परिस्थितियां बदलती है तो कई बार ये तनाव जो है हमें जकड़ना शुरू करती है और हमारी सोच को बदलना शुरू कर देती है. So there are times if a person has lost a loved one, it can be very stressful. और कई बार जब एक इंसान अपने करीबी किसी दूसरे व्यक्ति को खो देता है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा तनाव दे सकता है. Some of them are for the rest of their life, they are unable to handle their lives. आगे आने वाली जिंदगी भर वो इस प्रकार के तनाव के साथ जीते रहते हैं. You may say it is funny, but there are times even shifting of your place, your home, sometimes can be so stressful for a person to live in a new environment. आपको लग सकता है मैं जो बोलने जा रहा हूँ अब वो मजाक है, परंतु ये भी सच है कि कई बार हमारी जगह बदल देने से या एक नए जगह पर जाके रहने से तनाव हम महसूस कर सकते हैं. Okay, so circumstances are situations that we are living in, sometimes can bring a lot of stress. तो कहने का संक्षिप्त में ये अर्थ है कि परिस्थितियां जो है वो तनाव पैदा कर सकती है. Sometimes our personalities, the second one, we are looking at our personalities. The kind of a person I am, will respond to different situations in different ways. कई बार हमारा व्यक्तित्व जो है वो कारण बन सकता है तनाव का. जिस प्रकार मैं एक अलग इंसान हूँ, दूसरा कोई दूसरे अलग प्रकार के व्यक्तित्व के साथ होगा. So there are people who are very joyful in life, So for these people, they don't get stressed that much. हो सकता है आपके मित्रगण में कोई ऐसा हो जो बहुत ही आनंदमय जीवन बिताता हो, हमेशा खुश रहता हो, उसके जीवन में तनाव ज्यादा असर नहीं करता. We call them lucky go fellows. हम अंग्रेजी में उन्हें लकी गो फेलोज या ऐसे लोग कहते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं. But there are other people who are very sober and very serious. और कई ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो काफी गंभीरता के साथ अपने जीवन को बिताते हैं या काफी गंभीर रहते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में. Okay, you look at both these personalities. हम ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्तित्वों को देख सकते हैं. And both of them go through this same crisis. और ये दोनों व्यक्तित्व जो हैं एक ही प्रकार के कठिनाइयों से गुजरते हैं. So you look at both their personalities, the way they respond will be different. परंतु ये दोनों व्यक्तित्व जो हैं उनके सामने रखी हुई कठिनाइयों के सामने किस प्रकार उनकी प्रतिक्रिया होती है वो देखना मजेदार होता है. So personalities matter. कहने का अर्थ है कि व्यक्तित्व जो है वो कारण बनता है तनाव का.
not in the sense what I'm trying to say. God has made us unique as a person, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग बनाया है। which we will not be able to change. उसके पीछे सत्य यह है कि हम उससे तो नहीं बदल सकते, But it's good to understand what kind of a person I am. परंतु ये समझना भी जरूरी है कि किस प्रकार की व्यक्तित्व मेरी है, And it helps us a lot in facing life's challenges. और ये हमारे जीवन में आने वाले प्रतिदिन के परेशानियों का सामना करने में बड़ा आसानी या आसान कर देता है। So it could be circumstances, personalities matters. इसका अर्थ है कि कोई परिस्थितियां, हमारे व्यक्तित्व, अब तीसरा, Okay. Third, our lifestyle. और तीसरा हमारा हमारे जीवन जीने की शैली। There are many times, we bring ourselves into stressful situations. कई बार ऐसे परिस्थितियां में हम खुद को लेकर आने की कोशिश करते हैं जहां पर हम तनाव में हैं। There are people who can take it's stressful. Stress is something like this. ब्रदर सॉरी, कैन यू Yeah, रिपीट stress is something like this. दैट? कई बार तनाव इस प्रकार का होता है चंद Okay. लोगों के लिए। Yeah, let's put it. Here is a man who is carrying weight. मान लीजिए एक इंसान है जो कुछ वजन को लेकर खड़े हैं। Okay, here he can carry at the most 20-30 kilos. हो सकता है वो इंसान ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 किलो को उठा सके, Okay, but if he carries 60 kilos, परंतु अगर उसने 60 किलो तक उठा लिया तो will he be able to manage that? क्या वो उस वजन को उठाकर काफी देर तक खड़े रह सकता है? What happens in a physical realm is the same thing that happens with one's lifestyle. जो हम हमारे शारीरिक शरीर में देखते हैं, शारीरिक विषय में समझते हैं, वही हमारे मानसिक विषयों में भी हम समझ सकते हैं। There are times we live such lifestyles, such hectic lifestyles, such packed lifestyles, it becomes very stressful. कई बार हम हमारे ऐसे जीवन शैली को बिताने की कोशिश करते हैं, हमारी जीवन शैली हम ऐसे बना देते हैं जो काफी हेक्टिक है, काफी बिजी बन जाते हैं हम उसमें। Living in a city like Bombay, एक मुंबई के तरह एक शहर में रहने से we always used to pride ourselves as a city that never sleeps. हम हमेशा ये गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा शहर कभी सोता नहीं है। And you look at young people's lives, some of them will not go to sleep till 2-3 o'clock. और अगर आपको जवान लोगों के जीवन को देखें तो हम देख सकते हैं कि वो 2-3 बजे तक सोने के बारे में सोचते तक नहीं है। When you put so much pressure on your body, जब आप इतना सारा तनाव अपने शारीरिक शरीर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, when you don't give rest to your mind, जब आप अपने मन को शांति या आराम नहीं दे रहे हैं, what will be the natural response? आपका शरीर का प्रतिक्रिया किस प्रकार का होगा? It's going to be stressful. वो जरूर तनाव में आ जाएगा। So the lifestyle that we live often can land us into stress. तो कहने का अर्थ यह है कि कई बार हमारी जीवन शैली जो है वो तनाव की ओर हमें आगे ले जा सकती है। Okay, then there are expectations that people have can really be very stressful. चौथा जो बात है वो उम्मीद है, जो हम उम्मीद लगाए हुए रहते हैं लोगों के प्रति। I don't know what all of you are doing. Some of you may be studying. मैं नहीं जानता आप में से बहुत सारे क्या करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत जो है पढ़ाई करते हो, Some of you are working. आप में से कुछ काम करते होंगे। Okay, in both these fields you have expectations. Your parents have expectations. इन दोनों जगहों पर पढ़ाई हो या नौकरी हो, उम्मीदें हैं, परिवार की उम्मीदें हैं, खुद की उम्मीदें हैं। Your parents want you to do something, get so many scores, want you to do so and so, and sometimes when it becomes beyond your abilities, it can be land up in stressful situation. देखिए, आपके माँ बाप की कुछ आशाएं होंगी आपके प्रति, आपकी कुछ आशाएं होंगे, परंतु जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वो आपको तनाव की ओर लेकर जाते हैं। Okay, nobody is going to pay you anything in your workplace. Your boss has some expectations. आपको कोई भी मुफ्त में कोई भी किसी प्रकार के धन को आपको नहीं देंगे, जरूर आपके बॉस को आपसे आशाएं हैं। So sometimes when your boss has so much of expectations, when it is beyond your capacity, it can be stressful.
कई बार आपके बॉस को जब आपसे इतनी सारी प्रतीक्षा है, इतनी सारी आशाएं हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये सारे काम पूरा करें, तो हो सकता है वो आपके आपके उम्मीद से ज़्यादा बड़ी हो और वो आपको तनाव में डाल दे। Recently, we came across this boy. हाल ही में मैं एक लड़के से मिला। This boy kept aside everything for his 12th standard. इस बच्चे ने करीब अपने 12वीं के एग्जाम्स के लिए सब कुछ अपना अलग कर दिया था। Halfway through his exams, 12वीं के एग्जाम्स देते वक्त, आधा एग्जाम्स देने के बाद he wanted to quit. वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था या उस एग्जाम को ही छोड़ देना चाहता था। So there was so much pressure for him, he could not manage it. इतना सारा प्रेशर और दबाव से वो गुजरा है कि वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था। He would not even come to church. I'm talking about a Christian. वो मसीही होने के बावजूद वो चर्च में आना उसने मना कर दिया था, वो आना ही नहीं चाहता था। Okay, so there are times people have expectations, and when you try to chase those expectations, live according to those expectations, and if you're not able to, it can really stress you. कहने का अर्थ ये है, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी आशाएं हो सकती है, वो दूसरों की तरफ से हो या खुद की तरफ से, परंतु जब वो पूरा नहीं होता तो हम तनाव में फंस सकते हैं। Okay, sometimes the basic necessities of life can actually make us stressful. कई बार पांचवें पॉइंट पे जब हम आते हैं, कई बार हम ये समझ सकते हैं कि जिंदगी की कुछ जरूरतें हैं जो हमें तनाव में लेकर जा सकती है। Okay, we talk about food, clothing, shelter. These are basic needs of life. हम जानते हैं एक इंसान की ज़रूरतों के संबंध में कहा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों विषयों को हम देखते हैं। But sometimes people can become so bogged down with these things in life. परंतु कई बार इन इन विषयों के साथ इंसान जो है काफी दबाव महसूस कर सकता है। What I'm going to eat, what I'm going to wear. कई बार वो इस प्रकार सोच सकता है कि मैं क्या पहनने वाला हूँ, मैं क्या खाऊंगा आगे जाकर। इन सभी सवालों को अपने दिमाग में वो टटोलता है। There are so many things that are part and parcel of our life. कितनी सारी ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के साथ उसका जुड़ना जरूरी होता है। Okay, and if we are not prepared, if we are not able to face them in the right way, life can become stressful. तो ये भी सच बात है कि कई बार अगर हम इन ज़रूरतों को सही मायने में अगर हम उसे संभालते नहीं हैं या उसके साथ हम डील नहीं करते हैं, तो हो सकता है हम तनाव में आकर फंस जाएं। Okay, this is sixth point that we are looking is a really technical point. और ये छठा विषय जो हम आपके सामने आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वो काफी टेक्निकल चीज है। What I'm trying to say is that the way God has made us, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने हमें बनाया है, okay, we have chemicals in our body. हमारे अंदर कुछ इस प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। All those things actually are the ones which make our moods and different aspect of our lives, impact different aspect of our life. हाँ, यही वो केमिकल हैं जो इस प्रकार हमारे मूड को तैयार करते हैं या हमारे स्वभाव को जो उत्तेजित करते हैं, इत्यादि जो चलता है, वो सब कुछ ये केमिकल्स के कारण होता है। Okay, we can talk about our hormones. हम हमारे हार्मोन्स के बारे में बात कर सकते हैं। These are some of the things. As I said, do you remember one of the first slide we saw? Many times women are more prone to stress than men are. इसलिए जो मैं आपको पहला स्लाइड दिखा रहा था, उस विषय को इसके साथ हम जुड़ सकते हैं, जहां पर इस प्रकार कहा गया है, स्त्रियां जो है वो पुरुषों से थोड़ा ज्यादा तनाव में रहती है। So for them there are certain periods in a month where it could be really stressful. हो सकता ऐसा होता है महीने के उन मासिक के 5-6 दिनों के संबंध में अगर हम देखें, जहां पर उनका मूड जो है वो अलग प्रकार या ऊपर या नीचे जा सकता है। Okay, and the last thing that we see is that another aspect that we see is emotions. और जो आखिरी हम देखते हैं, वो 7वां जो बिंदु है, वो हमारी भावनाएं हैं। It could be anger. ये आपका क्रोध हो सकता है। It could be our guilt. ये हमारी जो गुनाह पहचानने का जो क्षमता है, वो हो सकता है।
You know, if we are not dealing with our emotions in the right way, it can be stressful. अगर हम हमारे भावनाओं को सही तरीके से उसके साथ डील नहीं करते हैं तो हो सकता है वो हमारे तनाव का कारण बने। And we all are emotional beings. और हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर भावनाएं मौजूद है। Okay. These are some of the things that I brought it together, you know, for us to understand, you know, how these are some of the things when it is now. If let's understand, none of these 7 qualities are wrong by itself. इसे एक अलग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो 7 विषय हमने अभी बात की जिसके ऊपर बात की, वो अपने में ही गलत नहीं है। Nothing is wrong with our circumstances, with our personalities, with the lifestyle, with our expectations or needs and necessities of life. यहाँ पर लिखे हुए जितने विषय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे विषय जो हैं वो अपने आप में ही हो सकता है सही हो। Okay, but how we manage, that's what matters, you know. परंतु किस प्रकार हम इन विषयों को मैनेज करते हैं या उसे सुलझाते हैं, वो कारण बनता है कि हम किस प्रकार तनाव से बाहर रह सके। Okay, this is how our world will tell us. इस प्रकार हमारे दुनिया जो है हमें ये बता सकती है कि हम तनाव से बाहर रहे। How do you de-stress yourself? किस प्रकार आप तनाव रहित जीवन को बिता सकते हैं? You know, spend time with pets. वो कहेंगे कि अपने जानवरों के साथ, अपने पेट्स के साथ समय बिताएं, जो पालतू जानवर है उनके साथ समय बिताएं। Control your emotions. वो कहेंगे कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें, काबू में रखने की कोशिश करें। Chat with your friends. वो कहेंगे कि अपने दोस्तों के साथ बात करें। You know, there are others will say, eat well, drink and be merry. कुछ ऐसे कहेंगे कि कुछ अच्छा खाना खाइए और मौज करिए। Some would say, work harder, you know, party harder. कुछ ऐसे कहेंगे कि काम भी जोरों से करें और साथ ही साथ पार्टी या मौज भी जोरों से करें, ऐश भी जोरों से करें। There are people who get into drugs. ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स या इत्यादि विषयों में गिर सकते हैं। You know, being involved in youth ministry, I'm quite surprised whether it is in the church or out of the church. There are people who are into drugs. क्योंकि मैं जवानों के साथ इस प्रकार बातचीत करता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कई बार पहचानने में मुश्किल हो जाता है ये चर्च के अंदर है या बाहर है, परंतु बहुत सारे जवान जो हैं वो ड्रग्स के अधीन हैं। So there are different ways the world looks at how you have to do exercise, do yoga, all these ways, you know, how you de-stress yourself, manage your stress. और इसलिए दुनिया बहुत सारी ऐसी बातों को बताती है कि जैसे योगा करें और खुद को तनाव रहित इस प्रकार के क्रियाओं में लवलीन करें, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो हैं वो दुनिया बोलती है। Okay, but does it help ultimately? परंतु क्या वो अंत में जाकर हमारे तनाव को कम कर सकता है? सवाल ये है। Okay, this is where we come to, you know, how God's word tells us. और यहाँ पर इस बिंदु में आकर हम ये समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन हमें समझाने की कोशिश करता है। You know, how do we deal with stress in life? किस प्रकार हम तनाव के साथ सौदा कर सकते हैं या समझौता कर सकते हैं। You know, as I told you, there are circumstances we cannot avoid. Your boss kicks you out of the job, we cannot help it. हम जिस प्रकार मैंने पहले आपसे कहा कि ऐसे परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसे समय हो सकते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है। जैसे मान लीजिए नौकरी चले जाना, वो हमारे हाथ में नहीं है। You did your best in your studies, but you didn't get your expected results. आपने पूरा कोशिश किया था, परंतु जिस प्रकार आप सोच रहे थे उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। You can't help it. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। You know, your best friend is taken away from you. हो सकता है आपके बहुत ही करीबी मित्र जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। You know, you have to change your place of residence. हो सकता है कि आपको आपके पुराने जगह को छोड़कर एक नई जगह पर आपको खुद को बदलना पड़ा, लाना You पड़ा। can't change your nagging parents. आप अपने माता पिता जो आपको हमेशा टॉन्ट मारते रहते हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। You know, there are a lot of situations and circumstances we can't do anything. ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। You can't even change your personality. हो सकता है कि आप अपने व्यक्तित्व को भी शायद बदल ना पाए। You know, so in situations like that, how God helps us, that's what we're going to look at it.
हम इन विषयों में जब हम कुछ नहीं कर सकते या कुछ बदल नहीं सकते, तब परमेश्वर किस प्रकार सहायता करता है उसके बारे में देखेंगे। I don't know how many of you heard the story of this song, it is well with my soul. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने ये जो गीत आपके सामने लिखा हुआ है, उसके पृष्ठभूमि को या उसके पीछे जो कहानी है, उसको जानते हो। It says, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. वो इस प्रकार कहते हैं, गीतकार जो कहते हैं वो कहते हैं कि वो नदी जहाँ पर मैं शांति के साथ गुजर रहा हूँ या वो एक राह बना रहा है, परंतु उस सागर के भीतर जो है जो जो पीड़ा और दर्द है, जो जो उसके करंट बनकर घूम रहे हैं। Okay, it was written by a man named Horatius Stafford. हम जानते हैं एक स्टैफोर्ड नामक इंसान ने He was a businessman. एक भक्त ने इस गीत को लिखा है। वो एक बिजनेसमैन थे। Okay, he went through real rough patch of his life. वो एक जिंदगी के ऐसे समय से गुजर रहे थे जो बहुत ही बुरा था। Okay, he lost all his business due to fire. हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कमाए हुए सभी धन को खो दिया था। बिजनेस सब ठप हो चुका था। Loss of business. बिजनेस सब बंद हो चुका था। He takes his wife and his children and sends them by boat to another place. और हम देखते हैं कि वो अपने बीवी और उनके बच्चों को इस प्रकार एक जहाज में, पानी के जहाज में बिठाकर दूसरे स्थान के एक तरफ भेजने की बात करते हैं। But unfortunately, on the way, as the children and his wife is going, the boat collapses and all of them lose their lives. और निर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार हो जाता है कि जिस जहाज में उनकी पत्नी और उनके बच्चे थे, वो जब सागर से गुजर रहे थे तो वो टूट जाता है और एक एक्सीडेंट में सभी मर जाते हैं। And this man, और ये व्यक्ति जो है, he comes to the exact spot. वो उसी स्थान में जहाँ पर उनका जहाज जो है डूबा था। And the person says, this is the place where the boat was capsized. और वहाँ पर वो कप्तान जो है वो इनसे कहते हैं कि वो वही स्थान है जहाँ पर आपके पिछला जहाज जो है वो डूब गया था। You know, he writes this song. वहाँ पर इन शब्दों को वहाँ पर वो लिखते हैं। He says, when peace like a river attendeth my way. वो इस प्रकार कहते हैं, वो नदी जो शांतिपूर्ण मेरे राह पर दिखाई देती है। When sorrows like sea billows roll, it is well with my soul. वो कहते हैं कि भले ही ऊपर शांति है, परंतु भीतर जो आग है, भीतर जो दर्द है, वो लहर बनकर उमड़ रही है, परंतु मेरे आत्मा के साथ सब कुछ शांत है। So what made this man to have such experience? उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो इस शांति को महसूस कर सकते थे? Okay, here is another story. मैं एक दूसरे कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। You know, his name is called Polycarp. एक पॉलीकार्प नामक व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। 84-year-old man. करीबन 84 साल, 84 years के वो व्यक्ति थे। Staring into death. People are telling that, he was being warned that he is going to be put on fire. और इस प्रकार उन्हें डराया गया था और उन्हें आग में डालने के बारे में वहां पर लोग कह रहे थे। You know, he says, all these years I have lived for Christ. I'm not afraid of dying. और वो इस प्रकार अपने शब्द ऊंचा करके कहते हैं कि इतने साल मैं परमेश्वर के लिए जिया हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, अब परमेश्वर के लिए अपना जान। What made this man to die in peace? ऐसा क्या हुआ कि वो परमेश्वर के लिए शांति में और आराम से मर सके? Okay, this is my last slide. ये मेरा आखिरी स्लाइड है। We will look at how do we deal with stress. हम देखेंगे किस प्रकार तनाव के साथ हम समझौता कर सकते हैं। You know, the way the world deals with stress are really superficial. तनाव के साथ समझौता करना, ये शब्द जो है काफी ऊपरी शब्द है। How the world deals with stress. किस प्रकार दुनिया जो है वो इस तनाव के साथ समझौता करती है। Okay, let's look at how does God wants us to deal with it. हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हम तनाव का सामना करें। First of all, you need to know your identity. सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। You know, our Lord, it's not about what we do, it's what we are that matters.
ऐसा कहा जाता है कि जो हम करते हैं वो नहीं, परंतु जो हम है वो मायने रखता है। Okay, and if you take this first point, you will be able to deal with everything that I'm going to tell with you, rest of the things. अगर आप इस पहले पॉइंट को समझते हैं तो बाकी सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तौर पे समझ पाएंगे। Okay, now when our Lord talks about in Matthew chapter 6, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब बात करते हैं, this is what our Lord says in Matthew chapter 6:25. जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 25वें वचन में आते हैं, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के शब्द हम वहां पर देख सकते हैं। Our Lord says, "Do not worry about your life, what will you eat or what will you drink, not about your body, what will you put on." वहां पर इस प्रकार लिखा है, 6 अध्याय उसका 25वां वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Okay, Jesus asked the question, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, "Is not life more than food?" लिखा है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, And body more than your clothing? और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Let's start with a simple question. Who gives you life ये and body? इस साधारण सवाल से हम शुरू करेंगे। आपको शरीर और प्राण कौन देता है? Okay, it is God who gives both your body and your life. ये परमेश्वर है जो आपको शरीर और आपको प्राण दे रहे हैं। Then Jesus tells them, I take care of the birds of the air. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं तो पंछियों का ख्याल रखता हूँ, They neither sow nor reap, और वो ना तो बोते हैं और ना तो काटते हैं, yet your heavenly Father feeds them. परंतु वो फिर भी आपका स्वर्गीय पिता जो है उन्हें खिलाता है। Okay, then he says, look at the grass of the field. और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम खेतों में उगने वाले घास के बारे में देखो। Sorry, he says lilies of the field. Lilies of the field. और हाँ, और वो वहां पर कहते हैं वहां पर उगने वाले फूल के विषय में देखो, How they grow, वो किस प्रकार उगते हैं, neither toil nor spin. और वो ना खुद खेत जोते हैं ना कुछ परिश्रम करते हैं। Now I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। If God take care of the birds of the air, अगर परमेश्वर हवा में उड़ने वाले पक्षियों का ख्याल रख सकता है, what is the worth and value? तो उनका मूल्य क्या है? What is the value of the lilies of the field? खेत में उगने वाले पुष्प या फूल क्या कीमत क्या है? Okay, you are much more valuable to your heavenly Father than all of these things. परमेश्वर के सामने आप जो है इन सभी विषयों से, इन सभी वस्तुओं से काफी ज्यादा मूल्यवान हैं। That's why Jesus says, are you not of more value than they? और इसलिए परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि क्या तुम इन सबसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? We need to know our identity. हमें हमारी पहचान के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। Okay, what is our Lord is talking here? Our Lord is not talking about everybody. यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। He's speaking to a very specific group of people. और वो यहाँ पर खास एक छोटे से झुंड के लोगों से बात कर रहे हैं। He was talking to his disciples. वो अपने चेलों के बारे में या चेलों से बात कर रहे थे। And he tells them that your heavenly Father cares for you. और वो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मूल्यवान समझता है या तुम्हारा ख्याल रखता है। And that's where the most important thing is. और वही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। Okay, if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो you can sleep through the storm. उस भवंडर में, उस तूफान में आप आराम से सो सकते हो। I'm not saying that there will be no storms. There will be storms in life. मैं ये नहीं कहता कि तूफान नहीं होंगे, तूफान जरूर होंगे। Okay, but if you are a child of God,
God will give you grace and all that is needed in order to go through life's challenging situations. परंतु अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर आपको संपूर्ण रूप में वो सब साधन प्रदान करेंगे ताकि आप उन परिस्थितियों से आराम से गुजर सको। Think with me a couple of minutes. मेरे साथ चंद मिनट इस प्रकार सोचिए, To what extent did God love people? किस हद तक परमेश्वर ने उनके प्रजा के साथ या उनके लोगों के ऊपर प्रेम रखा। You know, this is something that is mind-boggling. ये जो है आपके मन को हिला देगा। Okay, can you ever imagine that? The क्या creator, the sovereign of the universe, क्या आप इसे अपने कल्पना में सोच भी सकते हैं कि इस भूमंडल का रचनाकर्ता या बनाने वाला, okay, he's the creator. वो बनाने वाला है, Okay. रचनाकार है। Let me make it much more relevant. अब मैं Not even a single atom is beyond his control. मैं इसे और साधारण रूप में कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा छोटा अणु भी जो है वो उसके काबू में रहता है। Not even a single virus is outside his control. एक ऐसा वायरस भी नहीं जो उनके काबू में नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब उसके काबू में है। And this God to have loved us, और ये परमेश्वर जब उन्होंने हम पर प्रेम रखा, you know, and in order to enter into a relationship with us, और इसलिए कि वो हमारे साथ एक रिश्ते में आ सके, would send the second person of the Trinity, वो अपने त्रिएक परमेश्वर के उस रूप में से अपने दूसरे व्यक्तित्व को इस जमीन पर उन्होंने भेजा to live for us, ताकि वो हमारे लिए संसार में जी सके, to die for us, ताकि वो हमारे लिए संसार में मर सके, so that ताकि one day we can call him our Father, एक दिन हम उन्हें अब्बा पिता करके पुकार सके, so that we can turn away from our sins ताकि हम हमारे पाप से मुंह मोड़कर दूर हो सके and enter into a relationship with him. और एक रिश्ते में उनके साथ बंध सके। Okay, that's what I'm talking about. If you are into that relationship with God, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस तरह के एक रिश्ते में परमेश्वर के साथ हो तो, if you can look at God as your Father, अगर आप अपने परमेश्वर को पिता के उस रिश्ते में देख सकते हो तो there's nothing to worry much about. फिर उसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं बचता। Okay, it all begins with knowing your identity, creating your identity. ये सब शुरू होता है अगर आप अपने आप को पहचानते हो तो। Okay, so some of you, if you're not sure about that you are a child of God, may I tell you, deal with this. This is the first thing. अगर आप में से कुछ अगर नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हो या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसका खोज पहले करें या उसके विषय में और जानने की कोशिश करें। Don't even go to sleep. आप सोने तक ना जाए। You know, go through the Word of God परमेश्वर के वचन को खोले और पढ़ना शुरू करें till that point where God convinces you of His relationship with you. उस समय तक, उस क्षण तक आप पढ़े जिस क्षण में आप ये समझ जाएं कि आप सही मायने में परमेश्वर के Look at संतान हो। Isaiah 53, how much He loves you. यशायाह उसके 53वें अध्याय को देखिए और समझने की कोशिश करिए किस प्रकार वो हमसे प्रेम करते हैं। Look at John chapter 3 and see how much the Father has loved each one of us. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय को पढ़िए और देखिए किस प्रकार पिता ने अपने प्रेम को उनके लोगों के ऊपर रखा है। Okay, the first thing, know your identity. इसलिए पहला विषय जो हम हमारे स्क्रीन पे देखते हैं वो ये है, अपने पहचान को समझिए या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करिए। Second, you need to seal your destiny. दूसरा ये है कि हम हमारे अंत के उस बिंदु को उसे सिक्योर करें या उसे बचा कर रखें। Okay, Romans chapter 8 verse 1 is a very simple verse. रोमी उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन जो है वो एक सही वचन बनता है इस विषय को समझाने में। Okay, there is therefore no condemnation for the one who is in Christ Jesus. और वो जो प्रभु यीशु में है उनमें सजा नहीं। Okay, so if life is taken care of, the second thing is, what about your destiny? इसलिए अगर जीवन जो है वो संभाला जा रहा है तो आपकी नियति के विषय में क्या?
Why is it this man who could stand at that exact spot where he lost all his loved ones could sing, "It is well"? ये इंसान जिसने अपने परिवार को, अपने धन संपत्ति सब कुछ खो दिया है, उसी बिंदु में आकर वो ये कह सकता है और किस प्रकार कह सकता है कि मेरे आत्मा के साथ सब कुछ अच्छा है, Because he knew that his family's destiny was sealed. क्योंकि वो जानते थे कि उनके परिवार की जो नियति है या अंत जो है वो सुरक्षित है। Why could Polycarp be not stressed out? पॉलीकार्प के विषय में हमने देखा और वो इस प्रकार उस अंतिम क्षण में तनाव में आकर रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। क्यों? Because they knew what was their destiny. क्योंकि वो जानते थे कि नियति में उनके लिए क्या रखा गया है। My dear friends, listen to me. Sorry brother, can you repeat that? My dear friends, listen to me. मेरे प्यारे मित्रों, आप इस विषय को सुनिए। One of the reasons people go through stress is because they don't know what is there after this life. एक कारण इंसान जो है अपने तनाव से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं नियति ने उनके लिए क्या रख छोड़ा है। Okay, and once you know what your identity is, और एक बार जब आप अपने पहचान को समझ लेते हो या उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, like Paul, we can say there is therefore no condemnation for the one who is in Christ Jesus. और जिस प्रकार पौलुस कहता है रोमी 8 उसका पहले अध्याय में कि वरन वो जो आत्मा में है उनके ऊपर कोई सजा नहीं। Okay, you can just actually look forward to a glorious new beginning. वो आप अपने आगे एक महिमावान उत्पत्ति को सामने देख सकते हो। Okay, the third thing. और तीसरे विषय में जब हम आते हैं, okay, it's very important for us to not to carry too many loads. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, बहुत सारे बोझ के साथ हम आगे ना बढ़े। The book of 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7 says, जब हम पहला पत्रोस उसका 5वां अध्याय वर्सेस 6 and 7, chapter 5 उसका 6ठा और 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रोस उसका 5वां अध्याय और उसका 6ठा और 7वां वचन। It says, give yourself under the mighty hands of God. वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Okay, and then it says, casting all your cares on him, for he cares for you. और उसके बाद इस प्रकार कहा गया, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। You don't know about your future, don't worry, God will take care of it. Give it into his hands. His hands are mighty. अगर आपको आपके भविष्य के बारे में चिंता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानते हैं, और उनके हाथों में आप अपने आप को दे दो क्योंकि वो आपका ध्यान रखते हैं। You are wondering how can you manage now about the future, what work you're going to pick up, who is going to give you work. Trust it into his hands. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह आगे मेरा काम को बढ़ाऊं, कौन मुझे नौकरी देगा, इत्यादि विचारों के साथ जब आप घूम रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे दीजिए, वो ख्याल रखेगा। Don't carry loads, let God carry your loads. अपने बोझ को उठाकर न घूमे। That verse we read, verse 7, where it says, casting all your cares. What it means is that whatever loads that you have, burdens that you're carrying, lay it into God's hand. जिस वचन को हम पढ़ रहे थे वो 7वां वचन था, वो इस प्रकार कहता है, और अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर लाद दो। कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ उनके ऊपर डाल दो, हमें कुछ उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है। That's the third one, don't carry loads. और तीसरा विषय वही हमने देखा कि हमें कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। The next one. चौथे विषय में हम आएंगे। Prayer really helps. प्रार्थना जरूर मदद करता है। But if you pray in the right way, अगर आप प्रार्थना सही ढंग से कर रहे हो, we know this famous verse, you should memorize it. There are some verses that you must memorize it. ऐसे कुछ परमेश्वर के वचन हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि उसे मनन कर लेना जरूरी है, और आप करेंगे तो अच्छा भी है। Philippians chapter 4 verse 6. फिलिपियों की पत्र उसका 4था अध्याय और उसका 6ठा वचन। Don't be anxious about anything. लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। In everything by prayer and supplication
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, let your request be made known to God. विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। And the peace of God that passeth all understanding और लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, will guard your heart and mind in Christ Jesus. तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। Now learn to bring it before God. परमेश्वर के सामने लाना सीखो। As a matter of fact, it's a command actually. God is commanding you, do not be anxious for anything. ये इस प्रकार की एक आज्ञा दी गई है। सच मानो तो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। That's why I said, it's not that there will be no challenges in our life, no stress in our life, but God doesn't want us to, hold it and make it, become anxious and worried. इसलिए मैं इस प्रकार आपसे कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। समस्या जरूर होंगी, परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप चिंता मत करो। Prayer really helps that way. और प्रार्थना जो है इस संबंध में बहुत ज्यादा मदद करती भी है। I think Richard had said it some time back. When you look at the Psalms, the book of Psalms, a lot of Psalms are prayers. और भाई रिचर्ड जब गीत गाने से पहले जो कह रहे थे वो कितना सच है कि जब हम भजन संगीता देखते हैं तो कितने सारे भजन जो है वो पीड़ा में लिखी गई है। There are many times David wrote some of these Psalms. कई बार दाऊद ने जो अपने इस भजन को कई बार ये सोच कर लिखा है। He was fleeing from his enemy. वो समय पर लिखा है जब वो अपने शत्रु से भागने की कोशिश कर रहे थे। Death was so near to him. मृत्यु जो है उनके काफी करीब थे। I think it is one of the Psalms, if I'm not wrong, it's Psalm 3. मैं अगर गलत नहीं हूं तो भजन संगीता 3 जो है में इस प्रकार लिखा गया है। David says, I slept and I laid down and slept. वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं लेट गया और मैं ऊँग गया या सो गया। Now he was being chased by Absalom. और हम जानते हैं उस समय पर अब्सालोम के द्वारा वो पीछा किया जा रहा था। अब्सालोम जो है उसका पीछा कर रहा था। Lie down and sleep peacefully. परंतु हम दाऊद के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, वो लेट गए और ऊँग गए या सो गए। Because David learned to seek God, trust God, depend upon God. अगर हम सवाल पूछें क्यों, तो जवाब ये है क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना या खोजना दाऊद सीख चुका था। The next one is that learn to have this godly company. अगला विषय जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि एक स्वर्गीय या एक ईश्वरीय कंपनी या मित्रता में आप मिल जाओ। God has given us a community. परमेश्वर ने हमें एक समूह में रखा है। One day when everything in this world is lost, एक दिन जब इस संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, God will destroy everything and recreate everything. हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जो है अभी उसे नाश कर खत्म कर देगा और एक नया संसार होगा, एक नया स्वर्ग होगा। There's going to be one community that will last forever. एक ऐसा संगठन होगा जो हमेशा के लिए रह जाएगा। That is going to be the community of God's church, God's people. और वो संगठन या वो संगति जो है वो परमेश्वर के झुंड होंगे या परमेश्वर के संतानों का होगा। And this is how God's company is given by God to spur each other, to encourage each other, to build each other. और इसलिए इस प्रकार परमेश्वर ने ये संगठन बनाया है, इस प्रकार संगति बनाया है कि हम एक दूसरे को उत्तेजित करते रहे या एक दूसरे में उस जोश को बांटते रहे जो परमेश्वर चाहते हैं। Please remember, church is not only on Sunday. कृपया करके ये समझिए कि चर्च जो है या कलीसिया जो है सिर्फ इतवार को या संडे को नहीं होता। We are a community of God's people here on earth, lasting for eternity. हम एक ऐसे संगति हैं या समूह हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, जो अनंत काल के लिए वास करेंगे। And at times like this, और जब ऐसे समय आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में, my dear friends, I want to ask all of you, have you been with मैं somebody, talk to somebody to encourage them, to build them, to find out how are they doing?
मैं इस प्रकार एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस प्रकार आपके मित्र के साथ, इस प्रकार आपके किसी के साथ बैठे हो ताकि आप उनको प्रोत्साहन दे सके? You know, the word of God tells us in the book of Hebrews, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब में इस प्रकार कहते हैं, chapter 10, verse 24 and 25. वो उसके 10वें अध्याय और उसके 24वें और 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, It says, spur one another even as you see the day approaching. और इस प्रकार लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने होने न छोड़े और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। That's what we are called to do, encourage each other. और इसलिए तो हमें बुलाया गया है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। Just because you are under lockdown, that doesn't mean that you sit 24 hours by 7, you know, with your video games and all those things. God's people are important. बस क्योंकि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ये आप इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे आपके वीडियो गेम के साथ या आपके काम के साथ बैठे रहो, परंतु आपको परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करना भी ये आपका काम है। You know, there are young people who, for them, it's a lot of time they have just to sit and gaming and gaming and gaming. हम जानते हैं कि जवानों के पास काफी ऐसा समय व्यर्थ वो बिता देते हैं जहां पर वो गेम्स के साथ लगे पड़े रहते हैं। You know, where there are other fellow believers who are struggling through life. परंतु हो सकता है उसी समय पर दूसरे सह विश्वासी ऐसे होंगे जो अपने जीवन में कष्ट और मुसीबत उठा रहे हैं। Okay, the next point that I said is that workout. अगला विषय जो आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो है उसके ऊपर काम करें। How do you deal with stress? किस प्रकार उस तनाव के ऊपर हम काम कर सकते हैं। When I say workout, I'm not just talking about, you know, gymming. मैं जब वर्कआउट उस शब्द को वहां पर लिखा गया है, मैं व्यायाम के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, केवल व्यायाम के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। Okay? Exercise is good. It's a good stress buster. मैं ये भी कहता हूँ कि व्यायाम जो है वो बहुत अच्छा तनाव को कम करने का जरिया है। Okay, but here I'm talking about look at your life and work out things. परंतु मैं यहाँ पर इस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अपने तनाव को समझने की कोशिश करिए और अपने जीवन को उसके अनुसार उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। Identify those areas in your life where you're getting stressed. What are the things that are causing you? And change, prioritize your life, and you know, bring about a change. वो जगह अपनी जिंदगी के उन क्षणों को, उन जगहों को आप पहचानने की कोशिश करिए जो तनाव की वजह से ग्रस्त हैं या समस्या में पड़ी हुई है या ढंग से काम नहीं कर रही है, उन्हें पहचान कर अपने जीवन शैली को बदलने की कोशिश करें। So it is very important for us to work out in our, even in our own lives. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन को हम अच्छे से टटोल कर जांचें और उसके बाद उसके ऊपर काम करें। I can't change the circumstances, मैं मेरे परिस्थितियों को शायद नहीं बदल सकता, but I can change my attitude towards my circumstances. परंतु मैं मेरे विचारधाराओं को बदल सकता हूँ और Okay. उसके So there are a lot of areas where माध्यम के we द्वारा bring, मेरे प्रति sorry. मेरे If प्रतिक्रिया there को are बदल सकता हूँ। if there are areas where we bring change, it will, you know, it be better for us. अगर ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम चीजों को बदल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। The last thing that I want to close with. एक आखिरी बिंदु जो मैं कहकर बंद करना चाहता हूँ। There are times somebody may need medical, you know, assistance. हो सकता है ऐसे समय आ जाए, हो सकता है आ जाए जहाँ पर एक मेडिकल असिस्टेंस या हॉस्पिटल की जरूरत आपके जीवन में You know, पड़े। there are some people who may have chemical imbalance. हो सकता है आप ऐसे कुछ हों जिनके मन में वो केमिकल इम्बैलेंस नजर आए। You know, there are people who have mood swings. ऐसे भी हैं जो जिनको मूड स्विंग्स होते हैं या जिनका मूड जो है वो बदलता रहता है। You know, and some of them may need medical assistance. और हो सकता है उन लोगों को शायद एक डॉक्टर की जरूरत हो या एक अस्पताल की जरूरत हो। Okay, so if there is anybody like that, और अगर ऐसा कोई है जिन्हें डॉक्टर की सचमुच में जरूरत है, okay, he needs to reach out for any medical help that he needs for. और ऐसे परिस्थिति में एक डॉक्टर का सलाह लेना बहुत अच्छा बन सकता है। This very famous psychiatrist says this way, Christian psychiatrist. एक बहुत ही प्रसिद्ध मसीही साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक इस प्रकार कहते हैं। He says 75% of people who come to me for help, करीबन 75% जो है, 75% लोग जो मेरे पास आते हैं वो इस प्रकार के लोग हैं। they don't need any medical assistance.
उन्हें किसी भी प्रकार की दवाई की जरूरत होती ही नहीं है। All that they need is some biblical counseling. उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत होता है तो मैं बिब्लिकल काउंसलिंग देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता हूँ। But yet there are people परंतु फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो who may need some medical assistance. कुछ लोगों को दवाई की जरूरत पड़ सकती है। Okay, so if you are in that category, if you need, go ahead. अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो या आपको लग रहा है आप उस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो, तो उस मदद को लेने से पीछे ना हटिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। Okay, God Himself calls Himself as the great physician. क्योंकि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह खुद को एक अच्छा वैद्य के रूप में संबोधित भी करते हैं। There's nothing wrong in taking medication. इसमें कोई गलत नहीं है या उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम इस प्रकार के मेडिसिन को ले या उस प्रकार के दवाई को खाएं। So how do you deal with stress? How do you cope with stress? तो हम इस तनाव के साथ किस प्रकार हमारे समझौते को कर सकते हैं। We looked at these 7 ways in which we can actually deal with our stress. हम इन 7 विषयों को हमने देखा जिससे हम ये समझ पाए कि किस प्रकार हमारे तनाव के साथ हम लड़ सकते हैं। Okay, the first point is the most important. Know your identity. पहला बिंदु जो लिखा है कि खुद को पहचान या खुद के पहचान का ज्ञान को रखे या समझे, वो सबसे मुख्य विषय है। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो you can sleep through the storms of life. आप इस जीवन में उठने वाले सभी तूफानों में सो सकते हो, ऊँघ सकते हो, Because your heavenly Father cares for you. क्योंकि स्वर्ग का पिता, आपका पिता आपको आपका ध्यान रखता है। Loves you beyond imagination. जितना आप कल्पना कर सकते हो उससे कई गुना ज्यादा He is वो in आप पे perfect प्रेम control करता of everything. है। वो अपने आप में ही सभी प्रकार के सच्चाइयों के संपूर्णता में वो बसते So हैं। if you're a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो you know, God will give you grace and strength and all that is needed to go through the storms of life. परमेश्वर ये सहायता और मदद जरूर करेगा कि आप उस तूफान में से आराम से गुजर सको। I hope and pray that God's grace will be much more than sufficient for each one of us. मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की महिमा अधिकतर रूप में बरसती रहे। Even at times like this, that God will give us grace to और through these storms. और ऐसे समय पर भी जब परमेश्वर का वो कठिनाइयों का सामना करने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करे। Thank you so much. आप सबको धन्यवाद।